بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے 60 سالہ بوڑھے شوہر نے شادی کی رات کمرے میں آتے ہی اپنے ہاتھوں سے میرے لباس کو میرے وجود سے جدا کیا تھا اور میں شرما کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ میں نے یہ شادی جس بھی مقصد کے لیے کی تھی، لیکن اب یہ بوڑھا میرا شوہر تھا اور اس طرح میرے قریب آنا مجھے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر اس بوڑھے نے آہستہ سے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور اپنے ہاتھوں سے میرے دونوں۔ اس رات مجھے پتا چلا کہ کیوں شادی کی رات ہی لڑکیاں موت کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ 60 سالہ شوہر نے نوجوان مردوں سے بھی کہیں زیادہ بڑا کارنامہ دکھایا تھا اور پورے زور کے ساتھ مجھے۔ میں بھی تو اس کی پچھلی شادی کی ویڈیو دیکھ کے ہی اس سے شادی کر بیٹھی تھی، کیونکہ میری خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ بھی وہی سب کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آخر اس بوڑھے میں کتنا دم ہے۔ مگر آج اس نے زیادہ زور لگایا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر اس نے صبح تک شادی کے لیے ہر کسی کو خوبصورت اور حسین لڑکی چاہیے ہوتی ہے، پھر چاہے مرد خود عمر والا ہو، بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ایسا ہی 60 سالہ بغدادی بوڑھا میری زندگی میں آیا جو خود تو بے انتہا بوڑھا تھا، لیکن اسے خوبصورت اور حسین لڑکی کی تلاش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں تھا، بلکہ اس کی کئی شادیاں ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کون سی بد نصیبی اسے چمٹی ہوئی تھی کہ ہر بار شادی کی رات اس کی دلہن موت کا شکار ہو جایا کرتی تھی، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ پیسہ، دولت، شہرت، اس کے پاس ہر چیز تھی، لیکن اس سے شادی کی ہم سفر تو اسے ایسا ہی چاہیے تھا نا اپنی زندگی میں، جو بڑھاپے میں اس کا ہاتھ تھام کر اس کی خوشیوں کو پورا کرے۔ لیکن اس کی کوئی بھی بیوی ایک رات سے زیادہ اس کی ہم سفر نہ بن سکی۔ اس بوڑھے کے بارے میں مجھے سب کچھ میری بڑی بہن سے پتا چلا تھا، کیونکہ میری بڑی بہن اس بوڑھے کے گھر میں نوکری کرتی تھی۔ اس نے ہی بتایا تھا کہ وہ بوڑھا بڑا ہی بدقسمت ہے۔ میری بہن بھی بہت ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ اس دن اس بوڑھے نے میری بہن کو ہی شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ کوئی بھی جوان اور حسین اتنے بوڑھے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اسی لیے میری بہن نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اور اس وقت اس بوڑھے نے ایک عجیب و غریب پیشکش میری بہن کے سامنے رکھی کہ جسے سن کر میری بہن فوراً ہی راضی ہو گئی۔ ایک شام میری بہن اس بوڑھے کے گھر سے واپس لوٹی تو اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی۔ میں اور اماں دونوں گھر میں ہی تھے۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش لوٹی ہو؟ اماں وہ تھکی ہاری لوٹتی تھی، وہ بوڑھے کے گھر بہت زیادہ کام کرتی تھی، سوائی کی ملازمہ بھی نہیں رکھتی۔ بوڑھے کا گھر بہت بڑا تھا اور صفائی کا کام بھی بہت زیادہ تھا۔ میری بہن اکیلی صفائی والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بہت ہی بڑی خوشخبری لائی ہوں، مالک نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اور میں نے اپنے مالک کو شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور کہا کہ تمہارا مالک 60 سال کا بوڑھا ہے، اور تم نے ہی بتایا کہ جو لڑکی اس بوڑھے کو شادی کرتی ہے مر جاتی ہے، پھر تم کیسے یہ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ تم اتنی جوان اور خوبصورت ہو، تمہیں کوئی رشتوں کی کمی ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ مالک نے پیشکش ہی ایسی کی ہے کہ انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ اور پھر جب اس نے بتایا کہ اس شادی کے بدلے اس کا مالک اپنا بنگلہ اس کے نام کر رہا ہے تو میں بھی حیرت سے اچھل پڑی، لیکن پھر بھی میں نے غصے میں کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جب تم زندہ ہی نہیں رہو گی تو پھر بنگلہ تمہارے نام کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا اس سے شادی کر کے لڑکیاں کیوں مرتی ہیں، لیکن میں بہت تیز اور چلاک ہوں، وہ اتنی آسانی سے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ویسے بھی اتنے عرصے میں نے اس بوڑھے کو کوئی بھی برائی نہیں دیکھی، اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں بچ گئی تو پھر ہمارے دن بدل جائیں گے۔ میں تم لوگوں کو بھی بڑے بنگلے میں بلا لوں گی اور مجھے روز روز کی یہ صفائی کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر اماں تو خاموش ہی رہی تھی، لیکن میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بڑی بہن بہت ہی عزیز تھی۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ اب تک اس بوڑھے کی 5 جوان بیویاں مر چکی ہیں۔ میں اپنی بہن کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سر لالچ میں نہیں ہلایا، بلکہ اس کے سر پر لالچ سوار ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ ایک شادی ہم سب کی زندگیاں بدل سکتی ہے، اس کرایہ کے وقار سے بھی ہماری جان چھوٹے گی اور روز روز کی محنت مزدوری سے بھی۔ اس بوڑھے کے بعد جو بہت پیسہ ہے، میں تم لوگوں کی دھوم دھام سے شادیاں کروں گی، اور پھر جب تم لوگ سیٹ ہو جاؤ گے تو میں خود اس بوڑھے کو چھوڑ دوں گی۔ وہ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے اس کی فکر ستا رہی تھی، مگر وہ مجھے ہمیشہ سے بہت ضدی لگی تھی۔ اس بوڑھے کے گھر نوکری بھی اس نے اپنی ضد سے ہی کی تھی، اور اب شادی کا فیصلہ کر کے اس پر بھی پوری ضد سے قائم تھی۔ دراصل ہم نے بہت مشکل زندگی دیکھی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد کرائے کے مکانوں میں دھکے کھانا اور نوکری کے لیے پریشان ہونا۔ وہ بڑی تھی، اس لیے سب سے زیادہ محنت بھی اسی نے کی تھی، اور چونکہ وہ بڑی تھی اسی لیے سب سے زیادہ محنت بھی اسی نے کی تھی، اور اب اسے ایک شارٹ کٹ مل رہا تھا تو وہ اسے آزما کر دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر اس نے میرے اور اماں کے سامنے ہی اس بوڑھے سے نکاح کر لیا۔
वो बूढ़ा 60 साल का था, जिसके सर से सारे बाल सफेद थे, लेकिन हट्टा-कट्टा नजर आता था। लगता नहीं था कि उसकी उम्र 60 साल है। अम्मा ने इसे इस बूढ़े के साथ रुखसत किया और मुझे लगा जैसे जाते-जाते वो मेरी जान अपने साथ ले गई हो। सारी रात मैं बेचैनी के आलम में यहाँ-वहाँ टहलती रही और सुबह वही खबर हमें सुनने को मिली, जिसे सुनकर मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी। मेरी बड़ी बहन, जवान बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। वो सारे ख्वाब जो उसने अपनी आंखों में सजाए थे, उसके साथ ही चले गए थे। हम दोनों माँ बेटी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसकी तदफीन का इंतजाम करते या जनाजे के मामलात देखते। वो बूढ़ा ही अपने कुछ जानने वालों को लाया था और रोते धोते हमारी बहन का जनाजा उठा लिया था। जब वो तदफीन के बाद वापस लौटा तो मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और कहा कि तुमने ऐसा हम पर जुल्म क्यों किया? मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया है? बूढ़ा फूट-फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ। उम्र के इस हिस्से में भी मुझे किसी साथी का साथ नहीं मिलता। मैंने तो बहुत मुखलिसी के साथ अच्छे दिल से तुम्हारी बहन से शादी की थी, लेकिन ना जाने क्यों वो भी मुझे छोड़कर चली गई। डॉक्टरों ने यही कहा कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। अम्मा रोते हुए कहने लगी कि हमारी बच्ची इकलौती कमाने वाली थी, वही घर का खर्च अदा किया करती थी और चलाया करती थी घर। अब हमारा क्या होगा? ये बात उस बूढ़े को पता। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, बंगले की सफाई का काम के लिए अपनी छोटी बेटी को भेज देना। मैं लीना की जगह इसे दे दूंगा। लीना की जिंदगी शायद इतनी ही थी, लेकिन मैं आप लोगों को तनहा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर अम्मा राजी हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ करके घर तो चलाना था। फिर अपनी बहन की जगह मैंने उसके बंगले में नौकरी कर ली थी। मेरी बहन ठीक कहती थी, वाकई बंगले में बहुत ज्यादा काम था, लेकिन मालिक बहुत अच्छे थे। उनकी जात से किसी मुलाजिम को कोई तकलीफ नहीं थी, ना ही उनकी कोई हरकतें खराब थी और ना ही आदतें। मालिक अपने काम से काम रखते थे। मैं जैसी चाहती वैसी सफाई करती। मालिक ने कभी किसी मामले में कुछ ना कहा था, लेकिन फिर भी मालिक की इतनी सारी बीवियों को जवान उम्र में ही शादी की रात में इंतकाल कर जाना अपने आप में एक मुअम्मा था, और मैंने सोचा था कि मैं एक एक करके सारे मामले मम्मी को हल कर लूंगी। और यहाँ नौकरी करने के पीछे भी मेरा यही मकसद था। सफाई के बहाने मैं मालिक के घर और कमरे की तलाशी लेने लगी थी। कभी किसी अलमारी को खोलती तो कभी किसी दराज को। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बहन की अचानक मौत के पीछे मेरे मालिक का ही हाथ है। मगर ना ही मेरे पास कोई ठोस सबूत था और ना ही मुझे कोई अंदाजा था कि मेरी बहन को मार कर मालिक क्या हासिल कर सकता था। हम तो गरीब लोग थे, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरी बहन के मरने के मालिक को कोई फायदा होता। फिर उसे मारकर मालिक क्या हासिल कर लेता। एक दिन मैं सफाई करते करते स्टोर रूम पहुंची तो मेरा मालिक पहले ही वहां खड़ा था। उसे देखकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, आ जाओ, तुम सफाई के लिए आई हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो उसने मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं अंदर दाखिल हुई और ये देखकर हैरान रह गई कि मालिक के हाथ में एक एल्बम था और मालिक इसमें लगी तस्वीर को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जबकि चेहरे पर वही धीमी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी माजी को याद कर रहा हो। फिर मालिक ने वो एल्बम मेरे आगे कर दिया और कहने लगा, देखो मेरी बदकिस्मती की अलामत। ये सब वो लड़कियां हैं जिनसे मैंने मोहब्बत की शादी की थी, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन ये सब मुझे छोड़कर चली गई। मालिक के कहने पर मैंने वो एल्बम अपने हाथ में पकड़ा और उसके सफ़े पलटने लगी, और ये देखकर मुझे वाकई हैरानगी का झटका लगा कि मालिक की बीवियां 20 से 25 साल की उम्र की दरमियानी लड़कियां थीं, जो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन वो सब की सब मर चुकी थी। सबसे आखिरी तस्वीर मेरी अपनी बहन की थी। वो हंसती मुस्कुराती तस्वीर मैंने बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तस्वीर तो शायद उसकी शादी हफ्ता भर पहले की थी, क्योंकि जो लिबास उसने पहन रखा था वो लिबास मेरा था। मेरा लिबास था वो जो उसने काफी दिनों पहले पहना था। मालिक के पास इस लिबास में उसकी तस्वीर कहाँ से आई थी? मैंने हैरत से मालिक की तरफ देखा। मैं पूछना चाहती थी कि उन्होंने मेरी बहन की ये तस्वीर कब ली थी, क्योंकि इस तस्वीर का अंदाज बता रहा था कि बिना बताए खींची गई तस्वीर है। शायद मालिक ने मेरी बहन को प्रपोज करने से पहले ही ये तस्वीर खींच रखी थी, मगर मैं चाहकर भी मालिक से कोई सवाल ना कर पाई। मालिक खुद रोते हुए कहने लगे कि न जाने किसकी बुरी नजर मेरी जिंदगी को खा गई है। मुझे तो लगता है किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मुझे छोड़कर चली जाती है। मालिक को इस तरह बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मेरी भी बहन चली गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मैं मालिक का कोई कसूर इसमें नहीं है। मालिक तो सारी बीवियों को ही याद कर रहा था। कुछ देर बाद मालिक एल्बम हमारी अलमारी में रख के चला गया और मैंने अपनी सफाई का काम मुकम्मल किया। और इस बात को हफ्ता ही गुजरा था कि एक शाम मालिक की खूबसूरत और जवान लड़की को लेकर बंगले में दाखिल हुआ। वो भी कोई 20-25 साल की लड़की थी। मालिक ने उसके लिए खाना लगवाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। इन दोनों के दरमियान कुछ बातचीत हो रही थी जो मैं सुनना चाहती थी, इसीलिए मैं वहीं कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मालिक इस लड़की से कह रहा था कि मैं शादी पर यह बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हें हर वो खुशी और सहूलत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो।
फिर मालिक इससे रोते हुए कहने लगा कि मैं बीवियों के मामले में बड़ा बदकिस्मत हूँ। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में शामिल करते हुए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजीद तनहा नहीं रहना चाहता। इस लड़की ने मालिक के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी कि आप परेशान ना हो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं हट्टी कट्टी हूँ। हो सकता है कि जिन लड़कियों से आपने पहले शादी की है उसके साथ कोई मसला हो, लेकिन मैं आपके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मालिक खुश हुआ और उस लड़की के हाथों को चूमते हुए कहने लगा कि मैं कल ही कागजात तैयार करवाता हूँ, फिर ये बंगला तुम्हारे नाम हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। मालिक ने मेरी बहन से भी यही सब बातें की थी, लेकिन फिर मेरी बहन भी बड़ी खामोशी से इस दुनिया से चली गई थी और अब ये लड़की भी शायद मौत के घाट उतरने वाली थी। लेकिन कैसे शादी की रात क्या होना था जो ये लड़की इस दुनिया से चली जाती, इसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था। मालिक को 2 दिन बाद इसे शादी करनी थी और मैंने इससे पहले ही मौका देखकर मालिक के बेडरूम में एक कमरा नस्ब कर दिया था। मैं जानना चाहती थी कि शादी की रात इन दोनों के दरमियान क्या होगा। फिर मालिक इस लड़की को रुखसत करवा कर ले आया और मैं सारी रात बेचैनी के आलम में रही। मुझे सुबह का इंतजार था। सुबह वही हुआ जो अब सबसे पहले होता रहा था। मालिक की बीवी के इंतकाल की खबर सारे मुलाजिमीन को मिल गई थी। सभी सोगवार थे। मालिक की इस बीवी के आगे पीछे कोई नहीं था। वो गरीब लड़की बिल्कुल तनहा थी। मालिक खुद ही उसका जनाजा उठाकर ले गया और उसके पीछे तो रोने वाला भी कोई नहीं था। सारे पुराने मुलाजिम मालिक की बदकिस्मती पर मातम मना रहे थे। बूढ़ा चौकीदार कहने लगा कि पता नहीं मालिक की जिंदगी में कैसा ग्रहण लगा हुआ है, वरना हमारा मालिक तो बड़ा अच्छा और नेक इंसान है। उसने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बाकी सब भी मालिक की खूब तारीफें कर रहे थे, जबकि मेरे जहन में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि मुझे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है। मालिक को जाकर कुछ देर गुजरी तो सारे मुलाजमीन भी वापस अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए और मैं सफाई के बहाने मालिक के कमरे में पहुंची थी और मैंने वहां से वो खुफिया कैमरा निकाल लिया। और अब मुझे छुट्टी का इंतजार था, क्योंकि रात घर जाकर ही मैं सुकून से ये रिकॉर्डिंग देख सकती थी। जैसे तैसे मैंने सारा दिन निकाला और फिर रात को जब अपने घर वापस पहुंची तो कमरा बंद करके रिकॉर्डिंग लगाकर बैठ गई। और जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलने लगी मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे सामने मालिक अपनी बीवी के साथ मौजूद था और उसने अपनी बीवी को अपने हाथों से बरहना करके इसके आगे जो कुछ हुआ मेरे होश ठिकाने आ गए। आधा सच मैंने देख लिया और बाकी का आधा सच जानने के लिए मुझे वो कदम उठाना था जिसके बारे में मैं सोचकर ही कांप रही थी। लेकिन अगर मुझे अपनी बहन की मौत के बारे में पता लगाना था तो इसके लिए जरूरी था कि मैं खुद भी अपने मालिक की बीवी बनकर उसके कमरे में जाती और वो सारे मरहले से गुजरती जिस मरहले से मालिक की बीवी गुजरी थी। लेकिन मैं नाकाम ही रही, क्योंकि ना ही मैं ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही मुझ में ऐसी कोई खास बात थी कि मालिक मुझ पर गर्विदा होता। इसीलिए मैंने जानबूझकर मालिक को रिझाने के लिए अपना चाल ढाल अपने हुलिये को तब्दील किया और मालिक के आगे पीछे मंडलाने लगी। जानबूझकर मैं मालिक के सामने दुपट्टा ना पहनती और अपने निस्वानी हुस्न को अया करती। मालिक के करीब करीब जाकर इन्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करती और फिर 15 दिन की मेहनत के बाद एक दिन मालिक ने खुद मुझे अपने कमरे में बुला लिया और अपने पास बिठाकर कहने लगे कि तुमने मेरी बदनसीबी अपनी आंखों से देखी है। मैं हट्टी कट्टी की जवान लड़की को रुखसत करवा कर लाया था, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं फिर तन्हाई का अजाब झेल रहा हूँ और चाहता हूँ कि दोबारा शादी कर लूँ। मैं चाहूँ तो बगैर शादी किए भी लड़कियों को आसानी से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुनाह नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं शादी का रास्ता अपनाता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो इसी मौका के इंतजार में थी, फौरन राजी हो गई और मालिक से कहा कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मालिक ने बदले में वही बात की कि वो अपना बंगला मेरे नाम कर देंगे। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। जानती थी कि मैं ना जिंदा में रहूंगी और ना ही बंगला मेरे नाम होगा, क्योंकि शादी की रात ही मालिक मेरे साथ वो सब कुछ करेगा जो उसने अब तक अपनी सारी नई नवेली दुल्हनों के साथ किया था। मैंने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया था और मालिक से शादी की हामी भर ली। अपनी माँ को भी मैंने सारी सच्चाई बता दी और फिर वो दिन आ गया जब मैं रुखसत होकर मालिक के कमरे में पहुंच गई। मैं जानती थी कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले से हर चीज तैयार कर रखी थी। और फिर जैसे ही मालिक ने मुझे जूस का गिलास पकड़ाया तो मैंने बहाने से वो सारा जूस खामोशी से ज़ाया कर दिया कि मालिक को खबर भी ना हो सकी। मालिक ने अपने हाथों से मेरा लिबास मेरे वजूद से जुदा किया और कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर बनाना चाहता हूँ। फिर मालिक ने बरहना हालत में मेरी काफ़ी सारी तस्वीर अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज कर ली। कुछ देर बाद मैं आंखें बंद करके लेट गई और मालिक मेरे वजूद के साथ खेलता रहा। फिर मैंने अचानक ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ हो गया हो। मालिक मेरे करीब आया और उसने मेरी सांस चेक की तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोक ली। मालिक मुस्कुराया और किसी को फोन मिलाकर कहने लगा कि ये अब कई घंटों के लिए बेहोश हो चुकी है। मंसूबे पर अमल करने का वक्त आ गया है। मैं उसी मुकाम पर लेकर आऊंगा जहां बाकियों को लाया था। तुम उसे वहां से आराम से ले जाना और मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे देना। याद रखना
कि इस बार पैसे देने में देर ना करना, वरना मैं अगली बार कोई जवान और खूबसूरत लड़की तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मालिक की सारी आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी और मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि मालिक जवान और गरीब लड़कियों से क्यों पैसों के बदले शादी करता था और उनके साथ क्या करता था। मैं खामोशी से बिल्कुल इसी तरह पड़ी रही जैसे मुकम्मल तौर पर बेहोश हूँ। सुबह के वक्त मालिक ने नौकरों को इतला दी कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी माँ को भी बुलवा लिया। मेरी माँ को तो मैं पहले ही काफी कुछ बता चुकी थी। मेरी माँ ने वही किया जो मैंने समझाया था। वो बैठकर मेरे पास रोने लगी और फिर उसने खामोशी से एक छोटा सा फोन मेरे हवाले कर दिया, जिसको भी कानों कान इसकी बात की खबर ना हो सकी। मालिक ने मेरी तदफीन के बहाने अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर मेरा जनाजा उठाया, फिर मुझे गाड़ी में डालकर शहर से बाहर एक जगह ले गया और वहां ले जाकर उसने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया। मैं अभी भी बेहोशी का ड्रामा कर रही थी। मालिक इस आदमी से कहने लगा कि ये तकरीबन 2-3 घंटे बाद होश में आएगी, फिर तुम इसके आगे सौदा करके बेच देना। याद रखना कि ये इस शहर में ना रहने पाए, इसे दूसरे शहर निकालना है, किसी को पता ना चले कि ये जिंदा है, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसे भी वहीं भेज दो जहां बाकी सारी लड़कियां जा चुकी हैं। इस आदमी ने मुझे एक एम्बुलेंस वाली गाड़ी में लटाया और फिर गाड़ी रवां दवा हो गई। गाड़ी में एक अकेला ही आदमी था, क्योंकि उसकी नजर में मैं बेहोश पड़ी थी। मैं यहाँ से आने से पहले एक पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता कर आई थी। मैंने चुपके से उसे मैसेज छोड़ दिया। इसी फोन के जरिए मेरी लोकेशन भी ट्रेस हो रही थी। फिर वो आदमी मुझे एक ऐसी जगह लेकर गया जहाँ लड़कियों की खरीदो-फरोख्त का कारोबार होता था। वहां ले जाकर उसने मेरे मुंह पर पानी मारा तो मैंने होश में आने का नाटक किया और फिर उसने मुझे जबरदस्ती एक जगह कैद कर दिया और कहने लगा कि अब तुम्हारी बोली लगेगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और अपनी बहन की फिक्र भी सता रही थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरी बहन भी जिंदा है। वो भी किसी ना किसी दरिंदे का शिकार हो चुकी है। कुछ ही देर गुजरी थी कि पुलिस मेरी लोकेशन ट्रेस करके मुझ तक पहुंच गई। एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया था और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस जगह पर मेरी जैसी और बहुत जवान लड़कियां मौजूद थी, जिन्हें आजाद करवाया गया था और फिर कुछ पूछताछ के जरिए वो लोग मेरी बहन तक भी पहुंच गए थे। मेरी बहन भी एक ऐसे गिरोह के हाथों फरोख्त की गई थी जो लड़कियों से जिस्म फरोशी जैसा घिनौना काम करवाता था। मेरी बहन की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से इस जगह पर थी। पुलिस वालों की मदद से मैंने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था और उसकी ज़हनी हालत भी काफ़ी खराब थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसे एहतियाब हुई थी, तो मैं उसे लेकर वापस घर लौटी। तब तक पुलिस ने मेरे मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया था और मुझे पुलिस वालों ने एक बड़े इनाम से भी नवाजा था, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस गैंग की तलाश में थे। लेकिन ये गैंग किस तरह काम कर रहा था किसी को इल्म नहीं था, क्योंकि ये काम बड़ी खामोशी से और राजदारी से किया जा रहा था। मेरा मालिक एक खराब किस्म का आदमी था, जिसने अपने मुआशरे में अच्छी खासी साख बनाई हुई थी। वो गरीब और बेसहारा लड़कियों को पैसे के बदले शादी करता और इन्हें मुस्तकबिल के सुहाने सपने दिखाता और फिर शादी की रात ही इन्हें फरोख्त कर डालता। जब मैं ये वीडियो इस बूढ़े को शरबत में कोई दवा मिलाते हुए देखा था, इसी वक्त मैं जान गई थी कि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। इसीलिए मैंने इस रात वो शरबत नहीं पिया था और अपने आप को बचा लिया था। मेरी वजह से बहुत सी मासूम और मजलूम लड़कियां भी इस जाल से बच गई थी और इस गंदी जगह से निकल आई थी। आज मैं, मेरी बहन और मेरी माँ एक साथ है, लेकिन मेरी बहन ने अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों की एक बड़ी कीमत चुकाई है। वो तो हम सबको अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन अपनी इज्जत ही गवा बैठी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमारे साथ है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी गरीबी और तंगदस्ती का फायदा उठाते हैं, हमारी मजबूरियों से खेलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं और हमें इस बात की समझ आते बहुत देर हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से बहुत एहतियात बरतनी चाहिए।